ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. بات کچھ ایسی ہے کہ مہنگائی کا چرچہ ہر جگہ ہے. جو ہمارے ہاں بااثر طبقہ ہے, پریویلیج کلاس ہے, وہ اتنی زیادہ پرواہ نہیں کرتی مہنگائی کی. میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں جو لوگ امیر ہیں, جن کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ آج بھی پاکستان کا موازنہ امریکہ سے کرتے ہیں, برطانیہ سے کرتے ہیں, مشرق وسطیٰ کے ان ممالک سے کرتے ہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں, یا پھر سنگاپور یا کسی مہنگے ملک سے. ارے میاں وہاں پر آپ فیسلٹیز دیکھیں. جب آپ مہنگائی کا موازنہ ان سے کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں پر کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں, کیا کوالٹی اویلیبل ہے پروڈکٹ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. میں تو عموماً تقابلی جائزہ لیتا رہتا ہوں, اس پر میں چیلنج کر سکتا ہوں. اگر وفاقی حکومت کے کوئی ریسرچر بیٹھے دیکھ رہے ہوں تو سر آئیں, یہ چیلنج بھی آپ قبول کریں. میں آپ کو یو ایس اے کی سپر مارکیٹ, آپ کی مرضی کی, جو سے آپ بولیں, کوسٹ کو بولیں, والمارٹ بولیں, کے مارٹ بولیں, وہاں کی پرائس لسٹ منگا لیتے ہیں, پاکستان کی پرائس لسٹ لے لیتے ہیں, لے کے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے ڈالر کی قدر کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کون سا ملک مہنگا ہے, کون سا ملک سستا ہے نا. ایسے کر لیتے ہیں نا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ بات جو مہنگائی کی ہم کر رہے ہیں شاید یہ سچ نہ ہو, تو یہ کر لیتے ہیں. امریکہ کی جتنی شاپنگ مارکیٹس ہیں آج کل انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں, ان کی پرائس لسٹ آپ نیٹ سے نکال لو اور ہمارے والوں کی لے لو, پرائس کمپیریزن کر لیتے ہیں, کہانی ختم. دوسری چیز یہ ہے کہ آئیں کلیئر کٹ دوسرا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں. بین الاقوامی سطح پر ورلڈ بینک یا دیگر اور جو ادارے ہیں جو پرچیزنگ پاور پیریٹی کا انہوں نے بنایا ہوا ہے سسٹم, اس کو ہم لوگ آپس میں لے لیتے ہیں, آمنے سامنے رکھ لیتے ہیں, کمپیریزن کر لیتے ہیں, یہیں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ بات غلط نکلی کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کا تناسب دوسرے ممالک سے زیادہ ہے, اگر یہ بات غلط نکلی تو پھر قوم بھی آپ کے سامنے حاضر ہے, ہم بھی حاضر ہیں, اپنی غلطی ماننے کے لیے بھی حاضر ہیں. بھائی پاکستان کے اندر ڈسپوزیبل انکم ہے کتنی, لوگوں کے پاس تنخواہ ہے کتنی. ارے میاں میں آپ کو کیا بتاؤں لوگ کتنے پریشان ہیں, مہنگائی سے تنگ کتنے, اور غربت ہمارے ملک میں کتنی ہے, اور کفایت شعاری کتنی ہے. یہ تو آپ حیران ہوں گے. ایسے تھوڑی سوچتا ہے گورا کہ میرا جو لائن میں 2-3 بچے ہیں وہ ایک دوسرے کے ہی پرانے اترن پہنتے رہیں گے. یہ پاکستانی قوم کا حوصلہ اور کفایت شعاری ہے. پہلے بڑے بھائی وہی کپڑے پہنتا ہے, پھر چھوٹا بھائی وہی کپڑے پہنتا ہے, پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کو بھی پہنا دیتے ہیں. لوگ اسے لڑکا ہی سمجھتے رہتے ہیں, پھر سمجھانا پڑتا ہے نہیں بیٹی یہ کفایت شعاری کا عالم یہ ہے. اور دیکھیں گاڑیوں کا بیڑا غرق کر لیا, وہ پتہ نہیں کون سی, کبھی گیس لگا دیتے ہیں, کبھی کوئی چیز لگا دیتے ہیں, کبھی کوئی چیز گاڑی میں لگا دیتے ہیں, گاڑی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. بس یہ کہتے ہیں کسی طرح ہماری بچت ہو جائے. بائکوں کو دیکھیں کلا بازیاں کھاتی ہیں بائکیں سڑک کے اوپر. آپ دیکھیں لوگ, جو آدمی مجھے ملتا ہے وہ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے بائک لٹا دیتا ہے. کفایت شعاری میں ایک قطرہ بھی نہ بچے پیٹرول کا گاڑی میں. غربت مہنگائی سے لوگ اتنے تنگ, بے روزگاری ہمارے پاس میسر نہیں. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, جناب ڈاکٹر مرزا اختیار صاحب. ان کا باقاعدہ تعارف بھی کراؤں گا, ان سے گفتگو بھی کروں گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. اب ہم شروع کریں گے جی باقاعدہ طور پر پروگرام کے مہمان کا تعارف کراتے ہیں. جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, سابق سینئر نائب صدر FPCCI. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. سر 2 سال گزر گئے اور نہ قرضے اترے نہ ہی مہنگائی کنٹرول میں آئی. ظاہری بات ہے کارکردگی تو بڑی مفصل ہے, لیکن میں تھوڑا سا آج کل مائلڈ رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ پروپینسٹی ٹو ایکسیپٹ کرٹیسزم کتنی ہے. کبھی کبھار کچھ حکومتیں تھوڑی فلیکسیبل ہوتی ہیں, دے کین ٹیک کرٹیسزم ویری ویل. سم ٹائمز سرٹن گورنمنٹس آر ناٹ ویری فلیکسیبل اور ویلکمنگ ٹو کرٹیسزم. تو میں اسی لیے احتیاط برتتا ہوں. تو آپ اگر اس کا جائزہ پیش کرنا چاہیں تو وہ بہتر رہے گا. جی دیکھیں, ابھی منڈے کو میرا کالم جنگ اخبار میں پبلش ہوا ہے کہ حکومت کے 2 سالہ کارکردگی, اور میں نے کینڈیڈ ویوز دیے ہیں. اس میں جو چیزیں کچھ بہتری ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے, اور جہاں مایوسی ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کیا. حکومت نے جب آئی تھی تو یہ تبدیلی کے نام پہ, کرپشن کے نام پہ آئی تھی, لیکن ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ڈھونڈیں تو وہ ہمیں نہیں ملتی, تو لوگوں میں مایوسی تھی. حکومت نے جو پچھلا بجٹ نکالا تھا اس میں کارکردگی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بھی اکنامک انڈیکیٹرز
उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, ना एग्रीकल्चर सेक्टर का, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और ना सर्विस सेक्टर का। तो उनके वो वादे कि 1 करोड़ जॉब 150 लाख मकानात देने का, वो भी सिर्फ एक बयान और एक स्टेटमेंट हमें नज़र आता है। इस तरह से जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया है और तकलीफ़ है वो महंगाई है। आपने ये देखना है कि क्या महंगाई उसी तनासुब से बढ़ी है जो पिछले अदवार में बढ़ती रही है, तो हमें जवाब मिलता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा रेशो में महंगाई बढ़ी है। शक्कर की कीमत, आटे की कीमत बढ़ने से नान 20 रुपए का हो गया, जो 10 रुपए 8 रुपए का भी मुश्किल से मिलता था। तो कोई तनासुब नहीं है, जबकि इनकम लोगों की जो है वो तो कम हुई है बढ़ने के बजाय। लुक मैं आपको देता हूँ, असल में बहुत सारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि मीडिया वाले झूठे हैं, मीडिया वाले चीटर हैं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी, जो पूरा पाकिस्तान है वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, सिर्फ इनके स्टूडियोज़ में चीज़ें महंगी मिलती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत के कुछ लोग कहते हैं कि जी मीडिया वाले झूठे हैं, एंकर ड्रामेबाज हैं, बाहर कोई महंगाई नहीं। मैं वजह बतला देता हूँ क्यों हुआ, महंगाई क्यों बढ़ी। पहली चीज़ तो ये थी कि डॉलर की डिवैल्यूएशन इन्होंने करनी शुरू की जब, तो 168 रुपये का डॉलर हो गया, लिहाजा वो तमाम चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते थे, पेट्रोलियम की मसनूआत, खाने पीने की अशिया, खुर्दनी तेल, उन सब की कीमतें बढ़ी। और जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं, किराए बढ़ते हैं, तो हर चीज़ अक्रॉस द बोर्ड बढ़ जाती है। फिर इनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं लिए गए, लिहाजा प्राइस कंट्रोल मौसर नहीं था, जिसकी वजह से चीनी का स्कैंडल आया और चीनी की कीमत बढ़ गई, आटे का स्कैंडल आया, आटे की कीमतें बढ़ गई, और इस तरह से तमाम खाने पीने की अशिया जो हैं वो आदमी की इस्तात के बाहर जाने लगी। सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सिंसियर आदमी, कोशिश कर रहे हैं मामलात को संभालने की, लेकिन उनको मिसगाइड करने के लिए कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने उनके गिर्द एक हिसार बांध लिया है। वो उनको ये कहते हैं कि मीडिया वाले झूठे हैं। मेरा जो सवाल था दोबारा से आपको दोहरा दूं, मीडिया वाले झूठे हैं, ये गलत बात करते हैं, महंगाई नहीं बढ़ी, चीज़ों की कीमतें वहीं की वहीं हैं और ये सस्ती मिल रही चीज़ें। ये वजाहत करें, क्या ये महंगाई बढ़ी है, ये फैक्ट है कि नहीं है? ये मेरा सवाल है। बात आपकी सही है वाली, महंगाई बिल्कुल बढ़ी है और हू शरबा महंगाई बढ़ी है, कई गुना बढ़ी है। और अफरात ज़र जो महंगाई का एक इंडिकेटर है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 4-5% से लेके इस वक्त 10.5% के ऊपर बात हो रही है। तो ये महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? नान 20 रुपए का हो गया कि नहीं? रोटी 12-13 रुपए की हो गई कि नहीं? जो आदमी 3 नान खाता था एक फैमिली वाले, वो अब 2 लाके और उसी से अपनी भूख मिटाते हैं। तो महंगाई भी बढ़ी है और कई गुना बढ़ी है, जबकि उसके मुकाबले में बाहर के ममालिक में ये होता है, जो ममालिक के आपने नाम लिए, कि जब महंगाई बढ़ती है तो उसके साथ इनकम बढ़ाते हैं। इनकम बढ़ाने की या तो तनख्वाहें बढ़ती हैं या वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वो वहाँ पे कीमतें सब्सिडाइज करते हैं और इस तरह से आदमी मुकाबला महंगाई का कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी से जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे यहाँ इनकम बढ़ाने का कोई तसव्वुर नहीं है। इस बार आपने देखा बजट में तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई गवर्नमेंट मुलाजमिन की, 10% जो मिनिमम होता था, जबकि महंगाई कई इजाफा हमने देखा। हाँ, और ये इजाफा हुआ। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब स्टेट बैंक के रेट बढ़ाने शुरू करे 13.5% पे हो गए तो नई सरमायाकारी रुक गई। नई सरमायाकारी रुकी तो लोगों को मुलाजमतों के मौके बंद हो गए और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। आज मुल्क की बेरोज़गारी में वो लोग भी शामिल हैं जो मुल्क से बाहर से आ रहे हैं, गल्फ़ ममालिक से, और वो जो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं उसमें हम बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़, ये तो मैंने आपसे पूछना है, ये चीज़ मैं रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं हमेशा मुस्बत रहा हूँ, आपके सैकड़ों प्रोग्राम में आया हूँ, दर्जनों प्रोग्राम में इस बात पे बात की है। लोग जो हैं 1 लाख के करीब जॉब्स उनकी छूट गई हैं और वो वापस आए। वो लोग जो वापस आए वो अपने जमा पूंजी और फाइनल सेटलमेंट कर कर आए, यानी उनके जो भी वहाँ पे जमा पूंजी थी वो सब को बेच बाच के पैसे ट्रांसफ़र करके वो यहाँ आ गए। ये गल्फ़ ममालिक में बहुत वाज़ेह है, जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया पेश है। यूरोप में भी हुआ लेकिन वहाँ पे इतना नहीं हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान में असद उमर साहब ने कहा था 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगारी कोविड से होंगे। उनका कहना, मेरा कहना नहीं, 1 करोड़ 80 लाख।
لہٰذا یہ بے روزگاری جو ہے اس سے تو آپ کی پرچیزنگ پاور جو لفظ آپ نے استعمال کیا کم ہو رہی ہے، آپ کی استطاعت خریدنے کی کم ہو رہی ہے اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے استطاعت آپ کی اس قابل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اس داموں پہ خرید سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پھر شروع ہو گئی اسلام آباد میں۔ آخری جملہ تھوڑا ڈسمینٹل کر لوں آپ سرکولر انہوں نے نکالا ہے امریکن ایمبیسی نے کہ روستے میں اسٹریٹ جو کرائمز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں بیکاز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے، لوگ جو ہیں ایمٹی اسٹمک یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم۔ Yes. An idle mind is a devil's workshop and an empty stomach can make you do crimes that are unimaginable. لیکن ایون ادروائز آئی تھنک ایشو اس سے کہیں زیادہ ڈیپ ہے ہمارے ہاں، کیونکہ کرائمز کا ایشو تو بہت زیادہ سیویئر رہا ہے۔ یہ جو کرائم جس نیچر کے کرائم ابھی آپ کو رپورٹ کیے جا رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دے ہیو بین پریٹی کامن فار دا لاسٹ 3 to 4 decades۔ اس سے پہلے ایک اور کرائم بھی ہوتا تھا جو ابھی بھی کنٹینیو کرتا ہے، اور میں چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کا ضرور نوٹس لیں کہ بچوں کو، ہمیں بچپن میں کہانیاں سنائی جاتی تھی کہ بچوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے غریب علاقوں سے اور پھر ان کو ٹنڈا کر دیا جاتا ہے، ان کے کسی نہ کسی طریقے سے اپاہج بنا کر ان کو سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس پر پورے پر گینگز ملوث ہوتے ہیں اور گینگز کے پیچھے بہت سارے با اثر لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ کہانیاں ہیں جو میں نے بچپن میں سنی ہیں سر۔ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل تو میڈیا پر ہر چیز کا الزام سر۔ اور دوسری چیز سر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز، تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ فیک نیوز کا لفظ استعمال نہ، یہ فیک نیوز کا لفظ جو ہے بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو اختلاف میں بات کرتے ہیں لوگ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کریں، اپنے اور ان کے درمیان میں مصلحت کے تحت جو ہوں نا تھوڑا سا مدھم ہو گیا ہوں، ورنہ میں ایسا ملائم ہوں نہیں، آپ کو پتہ ہے میں تو کانٹے دار ہوں، لیکن یہ کہ میں دیکھتا ہوں حالات، واقعات، معاملات اور اس کے مطابق میں تھوڑا مصلحت کے تحت چلتا ہوں۔ It's not divergence from idealism, please. I will say what is right. The only thing that will change is my style. Because I have to be very patient and understanding. Because we have to realize who is across the table. ٹیبل کی دوسری طرف ہماری کون بات سن رہا ہے، ٹیبل کے برابر، ٹیبل کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی اس وقت ملک کے با اثر ترین لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے بات سنیں گے، مجھے ان کو اسی طرح بات بتانی ہے۔ تو آپ بھی کہہ رہے ہوں گے بھائی انداز میں تبدیلی، انداز میں اس وجہ سے تبدیلی۔ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب بات ہو رہی تھی، آپ نے 2 سال کا ذکر کیا اس میں، پھر ہم نے بین الاقوامی اداروں کے متعلق بھی بتایا، دوسرے ممالک سے آنے والی ترسیلات جو ہیں ان کے متعلق بھی آپ نے بتایا، لیکن آپ نے جواز پیش نہیں کیا۔ نہیں، میں نے آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہ جو ریمیٹنسز بڑی ہیں یہ اس وجہ سے نہیں بڑی ہیں۔ اچھا ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں، اس کا جواب آپ سے میں لیتا ہوں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ اب ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ملک کے معروف معیشت دان ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو اسے ایز اے مینز آف اکنامک پروگریس شو کیا جا رہا ہے کہ پہلے انفلیشن کم ہو گئی تھی، اب جو ہے وہ انفلیشن بڑھ گئی ہے، تو مے بی دے آر یوزنگ اٹ این انڈیکیٹر دیٹ از ریفلیکٹنگ دیٹ دیر از سم کائنڈ آف اکنامک ایکٹیویٹی اور کنزمپشن۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کے دونوں پہلو بتائیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ہمیں سب سے پہلے ہلو جی ڈاکٹر اشفاق صاحب، آئی کین ہیئر یو سر۔ نہیں تو بیچ میں آپ لوگوں نے بات شروع کر دی تھی نا، اس لیے میں رک گیا تھا۔ جی معذرت۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایک آدھ مہینے کے نمبر پہ چھلانگیں نہیں مارنا چاہیے اور نہ ڈپریس ہونا چاہیے، وہ کسی مہینے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک ریمیٹنس کا تعلق ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ اگر ریمیٹنس ہمارے بڑھے ہیں تو کیوں بڑھ رہے ہیں، یا ابھی اگر 2-3 مہینوں میں بڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پینڈیمک کے بعد جو حالات ہوئے ہیں دنیا میں، اور خاص کر مڈل ایسٹ میں، کیونکہ تیل کی قیمتیں بھی گر گئیں اور ان کی یہاں تمام ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی رک گئیں، تو وہاں سے لوگوں کو انہوں نے
बाहर भेज दिया, अपने अपने घरों में भेज दिया। तो ये जो लोग हैं हमारे वर्कर जो वहाँ काम कर रहे थे, ये उनकी सेविंग है जो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब वो काम करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने घर वालों को हर महीने भेज रहे होते हैं। लेकिन अब क्योंकि नौकरी खत्म हो गई है, उन्होंने अपना बैंक अकाउंट को बंद करना है, तो वो सारा पैसा जो है रेमिटेंस के जरिए से लेकर आ रहे हैं। तो ये वन टाइम अफेयर्स है, ये 1 से 2 महीने 3 महीने इसी तरीके से चलेगा जैसे जैसे लोग आ रहे हैं। अभी भी आप देखें कि हर कुछ थोड़े थोड़े दिनों में ये कहा जाता है कि पीआई की फ्लाइट जो है इतने 100 वर्कर्स को लेके दुबई से आ रही है, या शारजाह से आ रही है, या सऊदी अरब से आ रही है। तो क्यों हम कहते हैं? इसलिए कि वो वहां से खत्म हो गया है उनका जॉब, वो अपनी सेविंग लेकर आ रहे हैं, इसलिए बढ़ा हुआ है। तो ये बड़ा रिस्की है। सारी दुनिया में ये है कि इकोनॉमी उनके यहाँ मिडिल ईस्ट में भी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में भी काफी डिप्रेस्ड है। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि 2022 से पहले उनके हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो लोग आ गए हैं यहाँ पर, और इसलिए ज्यादा बड़ा सा नजर आ रहा है। आप खुद देखें कि जुलाई के महीने में ये $2.78 बिलियन था, लेकिन अगस्त में ये कम होकर $2 बिलियन पे आ गया है, यानी तकरीबन $800 मिलियन जो है वो रेमिटेंस कम हो गया है हमारा। तो हमें एज ए एनालिस्ट जो है इन सब चीजों को देखना चाहिए। होता यह है कि इनके जो वज़रा हैं हमारे काबीना के, ये बेचारे अब तो अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के कान में जाके ये सब बातें कर देते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं। तो ये अब सारे वज़रा जो है इस किस्म के अपनी अपनी नौकरी पक्की करने की खातिर ये काम कर रहे होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। I'll just ask you to stay online. I'll ask you to stay online. यहाँ पर आपकी बात की मेरे ख्याल तायीद ही करना चाह रहे हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब। सर, डॉक्टर अशफाक हसन साहब की आप बात की तायीद करना चाह रहे हैं जी। ये मैंने पहले भी आपको यही बतलाया था, और फिर अशफाक साहब ने वही बात कही जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये इतना ज़्यादा खुश हमें नहीं होना चाहिए। बाहर कोविड के बाद जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ख़त्म हुए हैं, लोगों की मुलाजमतें ख़त्म हुई हैं, लोग फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके अपनी जमा पूंजी जो बैंकों में उन्होंने रखी हुई थी लेके अब मुस्तकिल बुनियादों पे पाकिस्तान आ रहे हैं, इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जब हालात 5-6 महीने साल के बाद सही होंगे और हमें दोबारा अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो हम दोबारा जाएंगे। लेकिन इस अरसे में तो वो कौम में पाकिस्तान में जॉब की मतलाशी होंगे, उन्हें जॉब की यहाँ पे तलाश होगी। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि न सिर्फ वो लोग जो मुल्क में जॉबलेस हुए हैं उनको मुलाजमत के मौके दें, बल्कि जो बाहर से लाखों लोग आए जो जिंदगी भर कमा के देते रहे पाकिस्तान को रेमिटेंसेस की शक्ल में, उनको भी इस मौके के ऊपर मदद करें। अच्छा, लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस वन। डॉक्टर अशफाक साहब, अब एक चीज़ और है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये है कि बुनियादी तौर पर कहते हैं कि जनाब महंगाई बढ़ने की सतह बहुत कम नहीं होनी चाहिए। जाहिर बात है पाकिस्तान में तो ऐसा कभी भी नहीं होता, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे शायद इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है इट इज़ ए ट्रांजिशन टू बेटरमेंट इन द इकोनॉमी। क्या आप इसके साथ अग्री करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, सम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रन द मशीन ऑफ द इकोनॉमी। ये हमेशा ध्यान में रखें, बिल्कुल, क्योंकि ये ग्रीस का काम करता है। अगर आप क्या पानी का मोटर चला रहे हैं और उसमें आप ग्रीस ना लगाए तो आप चलाएंगे तो जल जाएगा आपका मोटर। इसलिए क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसको भी इंसेंटिव होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही है ताकि उसका इंसेंटिव रहे टू प्रोड्यूस मोर। तो इसलिए सम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब आप बताएंगे कि पाकिस्तान में वो सम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन से क्या मतलब है। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर मैं हुकूमत वक्त में हूँ तो मैं 5-6% अगर मुल्क में इन्फ्लेशन होगा तो आई विल नॉट बी अ वरीड मैन। मैं किसी और चीज पे कंसंट्रेट करूंगा, इन्फ्लेशन पे नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है और इसका अपवर्ड ट्रेंड है तो आई विल बी अ वरीड मैन। तो अभी जो पाकिस्तान में देखें इन्फ्लेशन है, ये ज्यादातर जो है फूड प्राइस ड्रिवन इन्फ्लेशन है जी। और इसकी कोई जस्टिफिकेशन मेरे नजदीक नहीं है इस वक्त में, क्योंकि मुल्क में गंदुम भी है, सब कुछ है। ये बैड गवर्नेंस है। जब रेट ऑफ द स्टेट कमजोर पड़ता है तो इस तरीके से हर ट्रेड के लोग अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं।
उनको पता है कि किसी ने कुछ पूछना नहीं है। अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, प्याज की कीमत अगर मुझसे कहता है कि 100 रुपए केजी है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इसने 100 ही मुझसे मांगा है। ये अगर 200 मांग लेते तो मैं क्या करता? इसलिए कि रेट ऑफ द स्टेट कमजोर होती चली जा रही है। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। स्टे विद अस। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, लेकिन एम ये सर, जब इन्फ्लेशन बढ़ रही हो डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, तो आप कैसे ये चाह सकते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से नीचे ले जाएं? That's not scientifically and academically possible. जी नासिर साहब, बहुत ही टेक्निकल और अच्छा सवाल आपने किया, इसका मैं यकीनन जवाब देना चाहूँगा। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी है जिससे स्टेट बैंक इन्फ्लेशन को कंटेन एंड कंट्रोल करता है, और आपने देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ने की सूरत में डिस्काउंट रेट जो है, पॉलिसी रेट बढ़ता जाता है। पॉलिसी रेट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। पॉलिसी रेट का एक ऑब्जेक्टिव होता है टू कंटेन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रोका जाए, कम किया जाए, बढ़ने न दिया जाए। दूसरी जो उसके बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ग्रोथ बढ़ाई जाए। पॉलिसी रेट से आपको ग्रोथ तो बढ़ नहीं रही है। जीडीपी की आज भी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की फिगर आई है वो 2%, और दूसरी तरफ से जो फिगर है वो माइनस में इंडिकेट हो रही है। तो आप दोनों जगह फेल हो रहे हैं। अगर आप बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन, वो मार्कअप रेट इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, तो आप दोनों जगह फेल हो रहे हैं कि ना ग्रोथ बढ़ा पा रहे हैं आप, और आप साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कंटेन नहीं हो रहा है। लिहाजा मैं ये गलती थी 13.25% तक वो बढ़ा के चले गए थे। अशफाक साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो और मैं चैनलों पे इस पे एतराज़ किया। अब इन्होंने रिवर्स करना शुरू किया, 7% पे लाए हैं, लेकिन उस अरसे में जो सरमायाकारी होनी थी वो नहीं हो सकी, सनतकारी थी वो नहीं हो सकी, कोई फाइनेंसिंग उस रेट्स के ऊपर 16-17% पे नहीं ले सका। डॉक्टर साहब, मैं और आप इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब की यहाँ पर इनपुट चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हम क्लासरूम्स के अंदर स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि जी फॉर्मूला ये है, और फिर व्हेन पॉलिसी मेकर्स के तौर पर लोग बैठते हैं तो दे आर विलिंग टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। सर, ये तो फिर एक एकेडमिक क्राइम हो गया ना, अगर हम इन्फ्लेशन से कम कर दें इंटरेस्ट रेट को when we think practically। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बात यह कि हमारे मुल्क में पढ़ने लिखने का रिवाज हो गया है खत्म, ठीक है ना। अभी मैंने जून के महीने में इसी पे एक आर्टिकल लिखा था, बिजनेस रिकॉर्डर में छपा, सारी दुनिया ने पढ़ा, और वो क्या था आर्टिकल कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंटरेस्ट रेट को स्टेट बैंक बढ़ाकर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकता है। There is no linkages। ये वेस्टर्न कंट्रीज में है जहां पर इन्फ्लेशन होता है डिमांड की प्रेशर बढ़ने से। तो जब डिमांड का प्रेशर बढ़ रहा हो तो आपको चाहिए कि लोगों के डिमांड को कर्टेल किया जाए, और डिमांड को कर्टेल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से आता है। फूड की प्राइसेस, टमाटर की क्रॉप खराब हो गया तो बारिशें ज्यादा हो गई, मार्केट में चीजें नहीं आई है, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से, सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से होती है। गवर्नमेंट खुद बढ़ाती है, बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, तो ये डिमांड प्रेशर नहीं है हमारा। तो हमारे पेट में दर्द है, बजाय के पेट के दर्द की गोली दें, हम उनको सर दर्द की गोली दिए चले जा रहे थे। और यही मैंने बताया कि बाबा पेट में दर्द है, पेट में दर्द की गोली आपके साथ बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, और मेरे ख्याल से आपके इस आर्टिकल के ऊपर हमें तफसीली बाकायदा प्रोग्राम करना पड़ेगा। आगे आने वाले हफ्ते के अंदर आपको दावत दूंगा। आई हैव टू से टू यू, बट आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अब आज जो गुफ्तगू हुई है उसको हम सम अप कर लेते हैं। तो डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो गुफ्तगू में आपने बातें की हैं उसके कंक्लूजन को निकालना बड़ा ज़रूरी है, तो कुछ आप अल्फाज इस बारे में कहें। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप चाहते हैं एक्सपोर्ट बढ़े, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपको करना होगा। FBR के जो नए मैनेजमेंट आई है उसने सुना 4 डिपार्टमेंट बना दिए, एक डिपार्टमेंट के जिसमें विद होल्डिंग टैक्स का अलहदा है, प्रोसिक्यूशंस का अलहदा है, लीगल का अलहदा है, ऑडिट का अलहदा है। अब अगर किसी कंपनी को एक लेटर जाता था
डिपार्टमेंट से और उसको भुगताता था, अब वो 4 डिपार्टमेंट से लेटर आएगा। तो एक तो ये चीज़ है, ये गलत है, मैं समझता हूँ। सेंट्रलाइज करके एक रखें ताकि कम से कम टाइम उनका लगे, उनके रिफंड्स करें। रिफंड्स फंसे हुए हैं पैसे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है आपकी। I have run out of time.